السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں مہر بخاری. آج دو اہم ترین معاملات ہوئے ہیں. ایک طرف کور کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد ہوا اور دوسری طرف وکلا کنونشن منعقد کیا گیا. کور کمانڈر کانفرنس میں فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کرنے والے دہشت گردوں، سہولت کاروں اور حوصلہ افزائی کرنے والوں سے ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نمٹے گی. آرمی چیف نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا کہ دہشت گردوں کے سہولت کاروں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. 259ویں کور کمانڈر کانفرنس میں اس عزم کا اعادہ بھی کیا گیا کہ ریاستی اداروں اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے کے لیے مذموم پروپیگنڈا کرنے والوں کو مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا اور انشاءاللہ ایسے عناصر مزید رسوائی کا شکار ہوں گے. کانفرنس کے شرکا نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ملک میں معاشی سرگرمیاں جو اس وقت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی زیر نگرانی جاری ہیں ان کی مکمل حمایت کی جائے گی. ایسی تمام سرگرمیاں جو معاشی استحکام اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو نقصان پہنچا سکتی ہیں اس کے خاتمے کے لیے حکومت کی مکمل معاونت کی جائے گی. کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے کے مطابق کانفرنس کے شرکا نے ہر قسم کے بالواسطہ اور بلا واسطہ خطرات کے خلاف پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے پاک فوج کے عزم کا اعادہ کیا. کانفرنس کے دوران ضم شدہ اضلاع اور بلوچستان کے بارڈر اضلاع میں پائیدار امن اور ترقی پر بھی زور دیا گیا اور کانفرنس میں شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج تحسین کے ساتھ ساتھ ان کے لیے فاتح خوانی بھی کی گئی. ناظرین، دوسری جانب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ملک میں آئین کی بالادستی، الیکشن کمیشن کی جانب سے الیکشن میں تاخیر، کرپشن، مہنگائی، لاقانونیت کے خلاف ملک گیر وکلا کنونشن کا انعقاد ہوا. کنونشن میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پاکستان بار کونسل سمیت تمام بار کونسلز اور بار ایسوسی ایشنز کے عہدیداران اور ملک کے سینئر وکلا نے شرکت کی. وکلا کنونشن کے جاری اعلامیے میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام وکلا برادری آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور عوام کے حقوق کے لیے کھڑی ہے. جاری اعلامیے کے مطابق پاکستان اس وقت تاریخ کے انتہائی نازک حالات سے گزر رہا ہے. ادارے آئین کے تحت انتخابات کے انعقاد سے گریزاں ہیں. عام انتخابات کا انعقاد آئین کے تحت 90 روز میں کروایا جائے. کوئی نگران سیٹ اپ 90 دن سے زائد عرصے تک قائم نہیں رہ سکتا. اعلامیے کے مطابق پنجاب اور خیبر پختونخوا نگران حکومتیں ان کانسٹیٹیوشنل یعنی کہ غیر آئینی ہیں. وکلا کنونشن کے جاری اعلامیے میں یہ عہد بھی کیا گیا ہے کہ ملک بھر کے وکلا آئین کا دفاع اور شہریوں کے حقوق کا تحفظ کریں گے. اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ وکلا برادری کو جبری گمشدگیوں پر شدید تحفظات ہیں. افواج پاکستان آئین اور قانون کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. حکومت یا کوئی ادارہ کسی جج کو دباؤ میں لا کر اپنی مرضی کا فیصلہ نہیں لے سکتا. جو ایسا کریں گے ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی. اعلامیے کے مطابق عام شہریوں کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل آئین میں آزادی کی دی گئی ضمانتوں کے خلاف ہے. سیاسی بنیادوں پر گرفتار کیے گئے سیاسی کارکنوں کو فوری رہا کیا جائے. خواتین کارکنوں کو ہراساں کرنا اور گرفتاریوں کی شدید مذمت کرتے ہیں. اعلامیے میں یہ کہا گیا ناظرین کہ پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے پر شدید تحفظات ہیں. سپریم کورٹ بار ملکی معاشی صورتحال کے تناظر میں تمام سٹیک ہولڈرز کو مدعو کرتی ہے کہ تعمیری مکالمے کا آغاز کیا جائے. وکلا کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے سینئر قانون دان بابر اوان نے آئین، قانون اور ریاست کی ان بیٹیوں کا حوالہ دیتے ہوئے اعلیٰ عدالت سے نوٹس لینے کی درخواست کی کہ جو گزشتہ 5 ماہ سے جیل میں قید ضمانت کی منتظر ہیں. میں آئین کے نام کے اوپر، قائد اعظم کے نام کے اوپر، بیٹی کے نام پہ اوپر درخواست کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ نوٹس لیجئے. آپ کی بیٹیاں 5 مہینے سے ضمانت کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ کس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ دستور ہو تو فیئر ٹرائل ہوتا ہے، تو رول آف لا ہوتا ہے. دستور ہو تو عدالت دیر نہیں لگاتی، بندے غائب نہیں ہوتے، پرویز الہی کیس نہیں ہوتا. دستور ہو تو بچیوں کو بار بار ایک کیس سے نکل کے دوسرے کیس میں گرفتار نہیں کیا جا سکتا. یہ ملک ہماری آخری آپشن ہے، پہلی آپشن ہے، آخری پناہ گاہ ہے، پہلی پناہ گاہ ہے، آخری سہارا ہے، پہلا سہارا ہے. اور اس سہارے کو جوڑنے کے لیے عوام اور سرزمین، ریاست اور لوگ، ظلم اور مظلومیت، اس کے درمیان بیلنس لانے والا صرف اور صرف ایک معاہدہ ہے، اس کو کہتے ہیں دستور پاکستان. اس اہم ترین وکلا کنونشن کا سب سے اہم پہلو بروقت انتخابات کا انعقاد تھا. صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن وکلا کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے جذباتی ہو گئے. ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے عدالتی حکم اور آئین و قانون کی دھجیاں اڑا رکھی ہیں اور اگر عدالتیں اپنے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کروا سکتی تو عدالتوں کو تالا لگا دیا جائے. نظام سیاست کے جن پہلوؤں کا احاطہ آج وکلا کنونشن میں کیا گیا، وہی نکات آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اٹھائے گئے. تعجب یہ ہے کہ گزشتہ 48 گھنٹوں میں ملک کی 2 معزز عدالتوں کی جانب سے آئی جی اسلام آباد اور چیف کمشنر اسلام آباد کو توہین عدالت کے نوٹسز، جبکہ سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس آپریشنز جمال ظفر، سپرنٹینڈنٹ آف پولیس
फारूक बुटर और साथ ही स्टेशन हाउस ऑफिसर नासिर मंजूर पर भी फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। इन तमाम सीनियर अफसरान का जुर्म अदालत की हुक्म अदूली मगर किसी और हुक्म की पासदारी है। अदालत सियासी रहनुमाओं को रिहा करने का हुक्म देती है मगर फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार अफरीदी के खिलाफ MPO ऑर्डर जारी करने के इख्तियारात से तजावुज पर तौहीन अदालत केस में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशंस इस्लामाबाद पर फर्द जुर्म आयद की। DC इस्लामाबाद इरफान मेमन पर फर्द जुर्म से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि अगर आपको सजा होती है तो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने जेल होगी। आप भी जरा जेल में रहकर देख लीजिए कि जिन्हें आप जेल भेजते हैं वो कैसे गुजारते हैं। DC इस्लामाबाद अदालत से मुखातिब हुए और उनका कहना था कि इस ऑर्डर का मकसद अदालती हुक्म की तौहीन करना बिल्कुल नहीं था। DC इस्लामाबाद ने अदालत से गैर मशरूत माफी मांगी, ताहम अदालत ने DC इस्लामाबाद की माफी मुस्तरद करते हुए फर्द जुर्म पढ़कर सुनाना शुरू कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाले समाअत के दौरान जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि कैसे ना फर्द जुर्म आयद करें। तौहीन अदालत का मामला यहां चल रहा था, फिर भी आप MPO ऑर्डर जारी करते रहे। अदालत ने SSP ऑपरेशंस जमील जफर पर फर्द जुर्म आयद करने से कबल इस्तफसार किया कि क्या आप दिफा पेश करना चाहते हैं, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि मुझे वक्त दिया जाए। अदालत ने मजीद वक्त देने से इनकार किया और SSP ऑपरेशन जमील जफर पर भी फर्द जुर्म आयद कर दी। ताहम अदालत ने एडवोकेट जनरल की इस्तदा मुस्तरद करते हुए तमाम नामजद अफसरान पर फर्द जुर्म आयद की। गुज़िश्ता रोज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से MPO के तहत मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेने के इख्तियारात वापस ले लिए थे। 3 अगस्त को शहरियार अफरीदी को लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने जमानत दी थी, लेकिन बाद में अडयाला जेल से रिहाई के फौरन बाद रावलपिंडी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। अदालत ने एक बार फिर रिहाई का हुक्म दिया मगर शहरियार अफरीदी को 24 घंटे तक रिहा न किया गया। सियासत इस वक्त संगीन दौर से गुजर रही है। अदालतें मुतनाज़े और सियासत दोहरे म्यार में मुब्तला दिखाई दे रही है। ये तहफ़्फ़ुज़ात जो आज उठाए गए हैं क्या कहीं सुने जा सकते हैं? बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट और सीनियर वकील एतजाज एहसन साहब से। एतजाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाए दीजिएगा, इस्लामाबाद की तमाम तर इंतजामिया और पुलिस मुश्किल में पड़ गई है। IG से DC तक सबको तौहीन अदालत के नोटिस जारी हो रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? अदालत रिहा करती है एक मुल्ज़िम को, बाहर पुलिस पकड़ लेती है। ये पुलिस इस्लामाबाद की तो काकड़ के तहत ही है। अच्छा, फिर वो रिहा करती है अदालत, फिर पकड़ लेते हैं। फिर अदालत बुला के कहती है इनको किसी केस में नहीं पकड़ना आप, वो फिर पकड़ लेते हैं। अदालत कहती है कि इनको अपनी हिफाजत में लेके जाओ, परवेज इलाही को, और उसके घर पहुंचाओ। वो DIG हैंड ओवर कर देता है परवेज इलाही को गुंडों, क्योंकि वो का पहना हुआ है, वो उन्होंने कोई पुलिस का लिबास नहीं पहना हुआ। पता ही नहीं किसको उसने हैंड ओवर कर दिया है। पता जब लगता है जब इस्लामाबाद पुलिस का अफसर IG कहता है कि जी ये तो हमने गिरफ्तार किया है, हमें ये कस्टडी मिल गई है इसकी हमारे तहवील में, और हमने इसका MPO के तहत ऑर्डर कर दिया। अब मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस के तहत आप एक ऐसे आदमी को के खिलाफ ऑर्डर पास कर रहे हैं कि हमें इससे नक्शे अमन का खतरा है, जो 3 महीने से जेल है, और आपकी जुरिस्डिक्शन में इस्लामाबाद आया ही नहीं। इस्लामाबाद तो आप उसको लेके आए हैं पकड़ के अगवा करके, वो इस्लामाबाद ही नहीं आया। 3 महीने से जेल काट रहा है, एक जेल, दूसरी जेल, फिर जेल, और वो इस्लामाबाद के करीब नहीं आया। और आप उस पे ये डिप्टी कमिश्नर शुड गो टू जेल, this police and IG etc. they should go to jail. बाबर सत्तार, जस्टिस बाबर सत्तार ने बिल जीत लिए, एंड आई होप ही एक्चुअली सेंड्स देम टू जेल। इनको कोई इतला ही नहीं है। ये सिविल सर्वेंट्स है, इनको सिविल सर्वेंट्स कहते हैं या पब्लिक सर्वेंट्स कहते हैं। जिस ढिठाई के साथ आप अदालत का फैसला ही नहीं मानते। ये वुज़रा जो थे, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में पहली दफा मैंने किसी वजीर को कहते सुना, और ख्वाजा आसिफ ने बरमला का, राना सनाउल्लाह ने बरमला का, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बरमला का कि हम उस अदालत को ही नहीं मानते तो उसका फैसला क्यों माने, ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में। और बार बार का ये इस किस्म की तवाइफुल मलूकी एनआरकी खाना जंगी पे की तरफ ले जाती हुई भूख और महंगाई, ये इनके पास तो बाहर डॉलर्स बहुत है, ये तो चले जाएंगे,
یہ تو باہر بیٹھیں گے اور انجوائے کریں گے. ہم کیا کریں گے؟ سو وکلا نے یہ محسوس کیا ہے کہ اس نے آ کے کچھ مطلب ہے کردار اس میں ہمیں ادا کرنا پڑے گا. اور اگر جج صاحبان بھی یہ نہ سمجھیں, میں بالکل یہ کہتا ہوں صاف کہ یہ اب کوئی بہانے بنانے کی بات نہیں ہے کہ جی ہمارے میں درار ہے, دو ایک طرف ہے, تیسرا صاحب اٹھ کے چلے جا رہے ہیں بینچ سے. یہ نہیں چلے گا. اور یہ کہ ہم فیصلہ دیتے ہیں ہاف خوش کر دیتے ہیں گورنمنٹ کو اور سپاہ سالار خوش کر دیتے ہیں اپوزیشن کو اور پی ٹی آئی کو یا پولیٹیکل کارڈرز کو, یہ بھی نہیں چلے گا. میں نے جب افتخار محمد چودھری صاحب کا کیس میں کر رہا تھا تو لاسٹ ڈے وی گاٹ انفارمیشن, اور چودھری صاحب کا ہی واز چیف جسٹس, دوسرے جج اس کے ساتھ رہے تھے, وہ کوئی نہ کوئی خبر نکال دیتے تھے. لاسٹ ڈے پہ دا نائٹ بفور دا فائنل آرگومنٹ میری, چودھری صاحب نے کہا کہ یہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اور فیصلہ جو کل آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس کو بحال کر دیں گے, لیکن وہ جو اس کے خلاف ریفرنس ہے پرویز مشرف نے بنائی اس کے جوڈیشل کاؤنسل میں, اس کو ہم برقرار رکھیں گے. میں نے کہا 2 مہینے بعد آپ کو نکال دیں گے. کہنے لگا نہیں ٹھیک ہے آپ. میں نے کہا دیکھو جی چوہدری صاحب, میں اس میں نہیں ایگری کرتا کہ ہاف ٹو دی پریزیڈنٹ اینڈ ہاف ٹو دی چیف جسٹس اور دونوں کو خوش کر دیں. میں نے کہا میں نے, اور دوسرے دن میں نے جا کے عدالت میں سیدھا کہا, میں نے کہا جی یہ آپ کے پاس آپشن ہے کہ چیف جسٹس کو بھی راضی کر دیں کہ اس کے بحال کر دیں, اور پریزیڈنٹ کو بھی راضی کر دیں کہ اس کی ریفرنس بھیجی ہوئی جو ہے اس کو اپہولڈ کر دیں. یہ دونوں چیزیں ایک میان میں نہیں رہ سکتی, یہ دونوں تلواریں. You have to choose one. And if you decide to give half and half, don't think that I am going to accept that as my victory. I am going to stand on the rooftop اور وہاں چھت پہ کھڑا ہو کے میں نعرہ لگا کے کہوں گا کہ سپریم کورٹ نے چیف جسٹس کی کیس کو ڈسمس کر دیا. ہم آدھا وعدہ ماننے والے نہیں تھے. اس وقت سپیریئر جوڈیشری کو بھی جسٹس امجد رفیق کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا, جس نے وہ آرڈر کیا تھا کہ پرویز الہی کو گھر پہنچاؤ, اور انہوں نے اس پرویز الہی کو حفاظت کے طور پر یہ اسلام آباد پولیس کے حوالے کر دیا. یہ اب ججز کو بھی بالکل اپنی دراریں بھول کے, دراریں اگر اصول پہ ہوتی تب بھی کوئی بات ہوتی, یہ درار بھول کے اگر کل چیف جسٹس فیض عیسیٰ آئے گا تو اس کو اس طرح کنڈکٹ کرنا چاہیے کہ ہم سب میں تحریک پیدا ہو کے اس کو سپورٹ کریں, جس طرح ہم عمر بندیال کو کر رہے ہیں. بٹ عمر بندیال کو بھی یہ خیال آنا چاہیے کہ these are the last days of his tenure and he has a choice. یہ چوائس یہ دنیا میں کسی بھی شخص کو, بڑے سے بڑے کو, ایک لائف ٹائم میں ملے نہ ملے, 2-3 جنریشنز کو یہ چوائس ملے نہ ملے, عمر بندیال ہے. He has either to be with the Cornelius line of judges or with Munir's line of judges. And he knows what I mean and what I say. سر I think the public also knows what you mean, مگر ادھر تو چوائسز میک کر لی گئی ہیں نا. سپریم کورٹ جب فیصلہ دیتا ہے اس پہ عمل درآمد نہ ہو تو سپریم کورٹ ایکشن کیوں نہیں لیتا؟ جب خیبر پختونخوا پنجاب کے الیکشنز نہیں کرائے گئے ہم نے کوئی ایکشن دیکھا نہیں, توہین عدالت کی گئی ایکشن دیکھا نہیں, جلسے جلوس میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو سپیریئر جوڈیشری کے نام لے کے للکارا گیا, ایکشن دیکھا نہیں. اس کو آپ صبر و تحمل کہتے ہیں, لیکن آپ جس چوائس کا ذکر کر رہے ہیں سپریم کورٹ کو اپنی ریٹ خود نافذ کرنی ہے, کیوں ایکشن نہیں لے رہی سپریم کورٹ؟ سپریم کورٹ پہ اب ڈپینڈ کرتا ہے پاکستان کے اگلے 50 سال کی جو تاریخ ہے وہ آئندہ 10 دن کے اندر کیا فیصلے دیتے ہیں عمر عطاب بندیال اینڈ دا ججز آن ہز بینچ. یہ پاکستان کی 50 سال کی آئندہ تاریخ ان 2 یا 3 فیصلوں پہ ڈپینڈ کرے گی. ہماری نسلوں کی قسمتوں پہ اثر انداز ہوگی. کیوں اگر جوڈیشری بیک فٹ پہ ہی رہتی ہے جس طرح یہ رہی ہے کہ 14 مئی کا آرڈر دے کے, حکم دے کے کہ 14 مئی کو الیکشن ہو, ایک آدھ
کو ان کو چاہیے تھی سزا دی ہوتی کنٹیمپٹ کی. اور کنٹیمپٹ کی جو بابر ستار از اے ہوپ. ہی از تھنکنگ آف دا فیوچر, ہی از تھنکنگ آف فیوچر جنریشن. وہ اپنی آج کو نہیں دیکھ رہا کہ مجھے آج میں نے یہ کر دیا تو ڈی سی بھی بڑی پیچھے لابی ہے اس کے, یہ بھی خلاف ہو جائے گا, آئی جی بھی خلاف ہو جائے گا, یہ سارے میرے خلاف کریں گے, پھر ان کے پیچھے جو سہولت کار ہیں وہ بڑے ہیں. ہی از تھنکنگ کہ اس ملک میں اگر انسانوں نے بسنا ہے اور اگر اس ملک نے بسنا ہے تو اس کے لیے رول آف لا, عدالت کے حکم کو تسلیم کرنا, یہ شعار بنانا پڑے گا جو نہیں. مگر اعتزاز احسن صاحب, اگر سپیریئر جوڈیشری بقول آپ کے بیک فٹ پہ ہے تو صدر پاکستان عارف الوی کو کس نے روکا ہوا ہے؟ وہ کیوں نہیں تاریخ دے دیتے؟ خود مانتے بھی ہیں کہ ان کا اختیار ہے آئین کے تحت, اور اب ان کا جانا بھی کل رات 12 بجے تک ٹھہر چکا ہے, تو کیوں تاریخ نہیں دے رہے؟ اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 48(5) آف دا کانسٹیٹیوشن, اور یہ جو جس کے خلاف تشریح کرتے ہیں چیف الیکشن کمشنر, اس پہ بھی میں ذکر کروں گا چیف الیکشن کمشنر پہ. یہ صدر اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 48 clause 5, when the president dissolves the assembly, he shall appoint a date not later than 90 days for holding the election. Not later than. ایک ہوتا ہے اگر اور جگہ آیا ہے within 90 days. within 90 days کو آپ اگر اسٹریچ کر کے 95 دن لے جائیں, مجبوری ہے اور کوئی تو عدالت کنڈون کر دے گی, 100 دن بھی کنڈون کر دے گی. But when the constitution says not later than 90 days, this is a negative imperative. اس سے escape ہی کوئی نہیں. The 91st day is illegal. The 91st day is illegal. یہ for the Punjab and Chief Minister Khyber Pakhtunkhwa بھی ہولڈ کرتا ہے. For them also. اب میں یہ سمجھتا ہوں ویسے اس سارے کھلواڑ میں جو سب سے بڑا مجرم ہے, میں لفظ استعمال کر رہا ہوں مجرم, اور میں نے کیا ہے پہلے بھی, وہ ہے چیف الیکشن کمشنر راجہ سلطان. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. پہلے دن سپریم کورٹ میں پیش ہوتے ہیں, وہاں کہتے ہیں جی آپ جو ٹائم, ہم بالکل تیار ہے, سب تیاری ہے, ہم الیکشن کرا سکتے ہیں ان ٹائم. دوسرے دن کسی نے کھینچا ہوگا, دوسرے دن گریز کرنا شروع ہو گیا. پھر پریزیڈنٹ نے بلایا, پریزیڈنٹ سے ملاقات میں 30 جون کو طے کر لیا. پریزیڈنٹ اور الیکشن کمیشن میں کنسلٹیشن کا وہ رکھا ہوا ہے, جو الیکشن ایکٹ ہے آف 2017, اس میں یہ رکھا ہے کہ کنسلٹیشن سے کریں. کنسلٹیشن پہ 30 اپریل ہوگی. پھر آپ کو پتہ نہیں کیا خیال آیا, یہ راجہ سلطان کو کیا خیال آیا کہ جی ہم الیکشن کرائیں گے 8 اکتوبر کو. وہ 8 اکتوبر کہاں سے آئی ہے؟ کس نے ڈیٹ دی ہے؟ آپ کے بائیں کان دائیں کان سے نکلی ہے کہ بائیں کان سے نکلی؟ کہاں سے نکلی ہے 8 اکتوبر؟ 8 اکتوبر کی ایک کنٹروورسی چلا دی. میں پریزیڈنٹ کو نہیں ملنے جا سکتا کیونکہ میرا اختیار ہے. وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے, اگر بلاتا ہے تو یو شوڈ گو, تعظیم میں جانا چاہیے. وہاں جا کے آپ ان کو بھلے منہ پہ کہہ دیں کہ سر ہماری انٹرپریٹیشن ہے, آپ کا اختیار نہیں ہے, اختیار میرا ہے, میں اس سے کچھ نہیں کر سکتا. اور وکلا بھی مجھے یہ صدر کو کون روک رہا ہے؟ آپ کہتے ہیں میں جاتا ہی نہیں. Has this ever happened in Pakistan? اچھا صدر صاحب کو لو, صدر صاحب میرا خیال اتنا شیل شاک ہوا ہے, اس کو جو پٹائی کی ہے اس کی یہ وفاقی وزراء نے کہ اپنی حدود میں رہو, باہر نکلنے کی کوشش نہ کرو, وہ میرا خیال سہم گیا. مجھے تو لگتا ہے وہ سہم گیا, جینوئنلی سہم گیا. وہ ایک ڈینٹل سرجن, ویری ایفیشینٹ, گڈ ڈینٹل سرجن, نام اور ریپیوٹ ہے ان کی, بٹ وہ پریزیڈنٹ ہو کے, اور پھر پریزیڈنٹ ہو کے اس کو ایک 2-3 وفاقی وزیر مطلب ہے سنا رہے ہیں, اور وہ بھی کہہ رہا ہے پرائم منسٹر بھی کہ آپ کا کیا اختیار ہے, آپ کیوں میڈل کرتے ہیں. وہ گھبرا گیا, وہ ڈیفینیٹلی. تو سر اعتزاز احسن صاحب, صدر مملکت بقول آپ کے سہم گئے ہیں, ہی شیل شاکڈ, سپیریئر جوڈیشری بیک فٹ پہ ہے, تو
सर फिर आप लोगों को किसने रोका है? क्या 2007 में भी जो आपने तहरीक चलाई और मुल्की काया पलट दी, क्या ये मोमेंटम वुकला बना सकते हैं आइन की बरवक्त इनकाद के हवाले से, सिविल राइट्स के हवाले से, और तमाम तर जो आइन की बेहुरमतियां आप लोगों ने आज गिन के इकट्ठे होकर गिनवाई, तो आप लोगों से इस तहरीक की उम्मीद की जाए? देखिए, अगर तो जजेस स्टैंड लेते हैं, फिर तो वुकला इस तरह उठेंगे उनके साथ। ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाली अगले 10 दिन की बात है। इसमें अगर स्टैंड लेते हैं पोजीशन, और अपने जो इट्स सो एविडेंट एंड सो ऑब्वियस कि जब नवाज शरीफ ने फौजी अदालतें लगानी थी, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी 2014-15 में, तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ा। अब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके आप जरूर फौजी अदालतें लगा लें, पर कॉन्स्टिट्यूशन के होते हुए आप नहीं लगा सकते टू ट्राई फौजी अदालतें, टू ट्राई सिविलियन। ये तो अदर मिन शम्स है। अब इस पे अगर स्टैंड लेंगे जुडिशरी, तो लॉयर्स विल पैशनेटली टर्न आउट एट हिज डोर स्टेप एंड बी अ डिफेंस, और वो इतना ज्यादा उसकी पोजीशन कंसोलिडेट हो जाएगी। पर्सनल एक द मॉरल अथॉरिटी ऑफ द चीफ जस्टिस, वो पीछे आने वाले चीफ जस्टिस भी विल बी इन हिज शैडो, although he himself casts a long shadow. Qazi Faiz Issa, he has declared in his own time in the Rawalpindi Bar Association case 2015 की वो जजमेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मिलिट्री कोर्ट्स नहीं लग सकते। He casts a great shadow, but here is the chief justice. अगर आप वो सुने ही ना, मैंने तो आज बार की अपनी खिताब में भी, अपनी तकरीर में भी मैंने ये किया, मैंने कहा जी आप भले चलो हमारे खिलाफ ही कर दें, पर ये ना कीजिएगा कि इन केसेस को, ये 2-3 बड़े केसेस हैं, इनको आप छोड़ के चले जाएं। अब ये हो भी सकता है, और मैं हैरान नहीं हूँगा अगर बेंच आए तो अब वो ग्रुपिंग इस तरह की है कि ग्रुपिंग की बुनियाद पे 3 मेंबर बेंच है, एक साहब जो दूसरे ग्रुप के वो बैठे ही ना, वो बीमार हो जाए, तो आपने केस ही नहीं कंक्लूड किया। केस इतना बड़ा, ये मौका जिंदगी में 10 नस्लों में एक दफा आता है कि यू हैव द चॉइस और टू टेक द हाई ग्राउंड और रिमेन ऑन द लो ग्राउंड, एंड दीज 10 days will affect and will rule upon the next half century. बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन मौजूद थे। फरमा रहे थे मौका 10 नस्लों में एक दफ़ा आता है, या तो हाई ग्राउंड ले लीजिए या लो ग्राउंड ले लीजिए। आने वाली नस्लें उन पर दूररस असरात मुरतब होंगे। सुपीरियर जुडिशरी स्टैंड लेगी तो तमाम वकला मुत्तहिद हो जाएंगे उनके पीछे। नाज़रीन, मुल्क में महंगाई की शरह 28%, बेरोजगारी की शरह 7%, हर पाकिस्तानी शहरी 2.5 लाख रुपए का मकरूज है। डॉलर काबू से बाहर है, पेट्रोल अवाम की दस्तरस से बाहर है, आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल पड़ रही है। हालात की इस संगीनी में पंजाब हुकूमत की, जिसको अभी एतजाज एहसन साहब अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे रहे थे, बशमूल तमाम वकला पाकिस्तान के, पंजाब की निगरान हुकूमत की नवाजिशात का आलम यह है कि उसने लाहौर हाई कोर्ट के 11 जजेस को 36 करोड़ रुपए से जायद के कर्जों की मंजूरी दे दी है। इन जजेस को उनकी 3 साल की बुनियादी तनख्वाहों के बराबर, यानी 3 साल की तनख्वाहों के बराबर कर्ज की मंजूरी दी गई है। हर जज माहाना 9 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है, और यूं हर जज को औसतन 3.25 करोड़ रुपए का कर्ज मिलेगा। ये कर्ज बिला सूद होगा, और जज 12 साल की मुद्दत में कर्ज वापस लौटा सकते हैं। अंडर ऑर्डिनरी टाइम्स समझ आ सकती है, मगर जजेस पर निगरान पंजाब हुकूमत की नवाजिशात गिवन द सिचुएशन वी आर फेसिंग किस मकसद के लिए हैं? इससे सरेदस्त ये सवाल उठना ज़्यादा अहम है कि जो निगरान हुकूमत इलेक्शन कराने के लिए बरसरे इक़्तिदार आई है, उसको ये इख्तियार दिया किसने है? वो जजेस पर मेहरबान हो जाए, करोड़ों रुपए कर्ज के नाम पर अब दे। इन दिस सिचुएशन, पहले तो हम देखते हैं पीडीएम की हुकूमत ने 10 अरब जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट्स में लगा दिए जब वो रियासत बचाने आए थे, और अब ये निगरान हुकूमत जिसने इलेक्शंस कराने हैं, ये इस तरह
कि प्रोजेक्ट्स को किस तरह किस हैसियत में अप्रूव कर रही है गिवन आर इकोनॉमिक डायर सिचुएशन राइट नाउ। ये सब ऐसे वक्त हो रहा है जब मुल्क शदीद माली बहरान का और बदहाली का शिकार है। अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी विल बी राइट बैक। निगरान वजीर खजाना की जानिब से IMF को बिजली बिलों के हवाले से रिलीफ देने का प्लान रिजेक्ट कर दिया गया है। नाजरीन, मुल्क भर में गैर कानूनी एक्सचेंज कंपनियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज हो गया है। बिजली चोरों के खिलाफ 482 FIRs दर्ज कर ली गई हैं, जबकि IMF की जानिब से मजीद 2 मुतालबे सामने आए हैं। 3 दिन कबल IMF से 400 यूनिट तक बिजली बिलों में 3 माहाना एक साथ में वसूली प्लान दिया गया, जिसे मुस्तरद करते हुए IMF ने 3 एक साथ को तो मान लिया है, लेकिन 400 यूनिट को कम करके 200 यूनिट तक के सारिफीन को रिलीफ देने पर रजामंदी जाहिर की है। जबकि इसके बदले IMF ने जुलाई से गैस की कीमतों में 50% तक इजाफा मांग लिया है। साथ ही बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन की मांग की है, जो पहले से ही शुरू किया जा चुका है। ARI के रिपोर्टर शोएब निजामी की खबर के मुताबिक IMF ने बिजली बिलों में 15 अरब रुपए के रिलीफ की मंजूरी दी है। रिलीफ की वजह 2 माह में FBR का 20 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करना बताया जा रहा है, जबकि जराये के मुताबिक ये रिलीफ सिर्फ उन 40 लाख या 10% सारिफीन को दिया जाएगा जो लाइफलाइन और प्रोटेक्टेड सारिफीन नहीं है, क्योंकि उनकी बिजली की कीमतों में गुज़िश्ता माह इजाफा नहीं किया गया था। साथ ही IMF चाहता है कि गैस की कीमतों में 45 से 50% तक इजाफा किया जाए, तो इसकी मंजूरी काबीना से ली जाए ताकि गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कम हो कि जो इस वक्त तकरीबन 1500 अरब रुपए तक पहुंच गया है। कीप इन माइंड 4 इयर्स अगो ये गर्दिशी कर्जा सिफर था। जबकि बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन और बिल अदा न करने वालों के खिलाफ वसूली के मंसूबों के ऐलान की मांग भी की गई है। अब एक जानिब IMF की डिमांड्स हैं, मुतालबात हैं, तो दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से डॉलर स्मगलर्स, गैर कानूनी मनी एक्सचेंज चलाने वालों, चीनी माफिया, बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। आज ही पेशावर में गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज कंपनियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया गया, जिसमें 545 डीलर्स को गिरफ्तार किया गया, 44 दुकानें सील कर दी गईं, $4,105 बरामद किए गए। जबकि निगरान हुकूमत ने बिजली बिलों में मुतवक्के रिलीफ ना मिलने के बाद यह फैसला किया है कि मुल्क भर में दुकानें और कारोबार मगरिब के वक्त बंद कर दिए जाएंगे। ज़राए तवानाई डिवीजन के मुताबिक इस फैसले के पीछे सर्दियों में पाकिस्तान को LNG कार्गोज ना मिलना भी एक अहम फैक्टर है, जबकि मुल्क में डॉलर स्मगलिंग माफिया का जोर तोड़ने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन के असरात सामने आ रहे हैं और महज 3 दिनों के दौरान ओपन मार्केट में रुपए की कदर में 24 रुपए इजाफा देखने को मिला है। आज कारोबारी दिन के इख्तिताम पर $1 पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में 4 रुपए कमी के साथ $308 पर बंद हुआ। एक्सचेंज कंपनियों की जानिब से डॉलर स्टेट बैंक को जमा करवाने शुरू कर दिए गए हैं, मगर सवाल यह है कि ये सब काम तो किसी भी जमहूरियत, किसी भी इंतजामिया और किसी भी सियासतदान की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो भत्ताखोरों, स्मगलरों, माफियाज का मुकाबला करे, डट कर करे, और वो भी अज खुद करे। फौज कब तक सिविल इदारों का काम करेगी? एक्सचेंज कंपनियों को गैर कानूनी कामों से रोकना, चीनी चोरी को रोकना कस्टम्स का काम है। गैर जरूरी महंगाई का कंट्रोल करना फूड कंट्रोल का काम है। ये तो बुनियादी काम है। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उन खानदानों को देखना चाहिए जिन्होंने अपनी मोनोपोली 6 से 7 खानदानों ने शुगर के अंदर रखी हुई है, और उसी के साथ साथ 10 से 15 खानदान जिन्होंने फूड और बेवरेजेस के अंदर रखा हुआ है। ये बुनियादी काम जो सिविल इंतजामिया ने करने हैं, ये इदारे कर क्या रहे हैं और क्या ये सस्टेनेबल दूरपा सॉल्यूशंस हैं? इसी हवाले से बात करेंगे। 2 साबिक वज़राए खजाना हमारे साथ मौजूद हैं, असद उमर और मिफ्ता इस्माइल। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। असद उमर साहब, आपसे आगाज करूंगी। फरमाए दीजिएगा कि 3 दिनों में 21 से 24 रुपए हमने देखा है डॉलर में कमी आई है, तो इंटरबैंक के ऊपर क्या आपको लग रहा है कि ज्यादा स्लाइड करेगा डॉलर पे, मजीद ये प्रेशर आएगा? मार्केट का रिस्पॉन्स इन द कमिंग डेज आप क्या देख रहे हैं? जी देखिए, डायनामिक्स जो करेंसी मार्केट की होती है ना, वो 2 मुख्तलिफ बेसिस हैं जो फंडामेंटल्स हैं इकोनॉमिक्स के, जिसकी बुनियाद के ऊपर करेंसी की मूवमेंट्स होती हैं, और तीसरा आंसर जो है वो स्पेकुलेशन या स्मगलिंग की वजह से हो सकता है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए जा रहे हैं वो जाहिर है सिर्फ डील कर रहे हैं आपके जो स्मगलिंग या अगर कोई करप्ट प्रैक्टिसेस हो रही थी उसके लिए, और कभी कभी उसको भी जरूरत पड़ती है, तो वो उसको डिस्काउंट नहीं किया जा सकता, और हुकूमतें वक्तन फवक्तन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन भी लेती रही हैं। लेकिन जो बुनियादी जो फंडामेंटल्स हैं वो ये हैं कि क्या आपके पास जो बैरूनी फॉरेन एक्सचेंज जो है उसके जो इनफ्लोज हैं, जो पैसा आपके पास आ रहा है, क्या वो उसके लिए काफी है? जो पैसा आपको या जो फॉरेन करेंसी आपको जरूरत है मुल्क में दरामदाद करने के लिए, और जो आपकी जरूरी जितनी भी चीजें हैं, अगर उसके अंदर फर्क होगा, यानी पैसा बाहर ज्यादा जा रहा होगा और अंदर कम आ रहा होगा, उससे रिजर्व गिरते हैं, उससे रुपया दबाव में आ सकता है। तो एक ये
बुनियादी फंडामेंटल ठीक करने की जरूरत है। जो हमने देखा कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर, तकरीबन 1.5 साल से ज्यादा हो गया, आपको रिजर्व्स गिरते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि आपके इनफ्लोज कम थे और आपके आउटफ्लोज ज्यादा थे। दूसरी चीज ये है कि जिन ममालिक के साथ आप आलमी मंडी में मुकाबला करते हैं उनकी अफरात ज़र की शरह क्या है और अपने मुल्क के अंदर अफरात ज़र की शरह क्या है, उससे भी करेंसी के ऊपर फर्क पड़ता है। क्योंकि अगर पाकिस्तान के अंदर मसलन 25% अफरात ज़र चल रहा है और आप मुकाबला कर रहे हैं बांग्लादेश और इंडिया वाला से, और वहाँ आप समझें कि बिलफर्ज 5% चल रहा है, तो अगर आपकी करेंसी गिरेगी नहीं, अगर उसकी कदर में कमी नहीं आएगी, तो आपकी चीजें आलमी मंडी में महंगी से महंगी होती चली जाएंगी और आप मुकाबला नहीं कर सकेंगे। तो ये दो चीजें हैं। अगर ये करेंसी को कंट्रोल करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर, हमारे इनफ्लोज और आउटफ्लोज जो है उनको मैच करना जरूरी है, और दूसरे अफराद ज़र की शरह को नीचे लाना जरूरी है। रिजर्व्स तो वैसे ही सर असद उमर साहब 7.7 अरब डॉलर अभी रह गए हैं एज वी स्पीक, लेकिन स्टेट बैंक ने बहरहाल एक कदम जरूर उठाया है और वो ये कोशिश है कि एक्सचेंज कंपनी बिजनेस को कर्टेल किया जाए और आपकी जो कैटेगरी बी है इसके अंदर एक्सचेंज कंपनीज को, उनको भी कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, बंद कर दें, जम हो जाएं, कैपेसिटी के हवाले, कैपिटल के हवाले से भी बेंचमार्क को इंक्रीज कर दिया है। तो और इसी हवाले से हम देख रहे हैं कि बैंक्स को भी, कमर्शियल बैंक्स को भी इजाजत दे दी गई है कि अब वो खुद एक्सचेंज कंपनी खोलें। आप खैर मकदम करते हैं इस कदम का? मेरे ख्याल में बुनियादी तौर पे ये सही डायरेक्शन में, सही से में जा रहे हैं हम, क्योंकि करेंसी मार्केट जो है वो इस वक्त उस तरीके से रेगुलेटेड नहीं है जिस तरीके से आपकी इंटरबैंक मार्केट रेगुलेटेड है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अमूमी तौर पे अगर आप देखें लॉन्ग टर्म के अंदर एक अच्छा रेगुलेटर रहा है, एक मजबूत इदारा रहा है। तो जो ये काम करने जा रहे हैं और ये जो अभी फैसला किया गया है, इसका मतलब ये होगा कि जो ओपन मार्केट के अंदर भी जो ट्रेडिंग होगी, जो करेंसी का कारोबार होगा, वो भी बैंक्स के जेर साया होगा, और क्योंकि वो बैंक से जेर साया हो रहा होगा इसलिए स्टेट बैंक उनका रेगुलेटर बन जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये ठीक से जा रहे हैं और ठीक फैसला किया। अच्छा, और मिफ्ता इस्माइल साहब आपको भी खुश आमदेद कहते हैं। IMF 200 यूनिट वाले बिजली सारिफीन के लिए नरमी पर मुत्तफिक हो गया है, गैस की कीमत में इजाफे का मुतालबा भी कर दिया है, 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ देने की हुकूमत पाकिस्तान की तजवीज बारहा मुस्तरद कर दी गई है। वर यू एक्सपेक्टिंग दिस? मैं याद रखें कि 400 यूनिट अगर आप कह रही हैं तो आप बेसिकली कह रही हैं अबाउट 90% ऑफ कंज्यूमर्स इन पाकिस्तान। तो अगर आपने 90% कंज्यूमर्स को ब्रेक देना है तो फिर 10% का तकल्लुफ भी क्यों करना है? तो 400 यूनिट की बात तो एकदम मेरे ख्याल से गैर मुनासिब थी। तो मुझे पता है, मेरे ख्याल से हुकूमत को भी ये पता थी, उन्होंने सिर्फ कह दिया होगा, एक निगोशिएटिंग स्टांस होगा। लेकिन आई थिंक 200 यूनिट जो हैं इसमें भी देखें 40 लाख लोग मजीद प्रोटेक्ट हुए हैं। इससे पहले जो प्रोटेक्टेड और लाइफ लाइन कंज्यूमर्स होते हैं जिनके रेट नहीं बढ़े, तो ये 40 लाख यूनिट मिलाकर ये तकरीबन 60% हाउस होल्ड हैं जिनके रेट्स नहीं बढ़े जाएंगे, या जिनके रेट्स जो अगर कुछ बढ़े हैं तो वो बाद में लिए जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आई थिंक ये इस वक्त जो हमारी माशी हालत बहुत मुश्किल में है, यहाँ पे आई थिंक ये अच्छा रीजनेबल सोल्यूशन है, तो हमें वेलकम करना चाहिए। लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब, IMF ने निगरान हुकूमत पर स्टैंड बाय मुआहदे में जो की जाने वाली कमिटमेंट्स हैं उसके ऊपर भी एक बार फिर जोर दिया है कि जनाबे वाला भी करने वाले काम शुरू कर दीजिए, जिसमें अखराजात में कमी के साथ साथ PIA, स्टील मिल्स, RLNG प्लांट्स और डिस्कोस जैसे खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी है, और 203 सरकारी कंपनियों को मिनिस्ट्री से निकालकर वजारत खजाना के मातहत करने के मुतालबात भी किए गए हैं। IMF का यह मानना है कि ये कंपनीज लाइन मिनिस्ट्रीज के मातहत इनएफिशिएंट ही रहती हैं। सो दीज आर ऑल द थिंग्स जो आप दोनों रात की हुकूमतों ने आके वादे किए, आप कर ना सके। ये हुकूमत आपको लग रहा है कर लेगी बिकॉज दे डोंट हैव अ पॉलिटिकल कैपिटल ऑन द लाइन? अब मैं ये तो नहीं पता ना कि ये हुकूमत कितना कर सकेगी या नहीं कर सकेगी, या कितना अर्सा रहेगी। लेकिन जहां तक IMF की डिमांड है कि आप निजकारी करें, मेरे ख्याल से ये तो बड़ी जायज डिमांड है और ये पाकिस्तान के लोगों के हक में। आप देख लीजिए कि पिछले साल PIA ने 80-90 अरब रुपए का नुकसान किया है। 750 अरब रुपए का PIA अब तक हिस्ट्री में नुकसान कर चुकी है। पता नहीं कितनी बेतहाशा आप स्कूलें, कॉलेजें, अस्पताल बना सकते थे पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में इस नुकसान से। जो हमारे भाई बहन PIA में नौकरी करते हैं, हम उनकी नौकरी को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन इस चीज की निजकारी करना जरूरी है। यही बात रेलवे में है, यही बात डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में है, यही बात गैस कंपनियों में है। हुकूमत से ये चीजें नहीं होती है, हुकूमत का काम नहीं है। तो मेरे ख्याल से IMF की ये बात दुरुस्त है कि इसकी तरफ जाना चाहिए, लेकिन वेदर केयरटेकर जा सकते हैं नहीं और कितना असर रहते हैं इसका तो मुझे इल्म नहीं है।
सर मुझे लगता है इन्हीं से उम्मीद लगानी चाहिए, लेकिन असद उमर साहब आपकी तरफ आती हूं। मुझे ये फरमाई दीजिएगा कि एक कुछ स्ट्रक्चरल बेंचमार्क हैं जो आईएमएफ ने रखे हैं, उसमें जो इंटरबैंक और ओपन मार्केट के दरमियान स्प्रेड यानी कि फर्क है, उसको कहा गया 1.25 से ज्यादा ना हो, तकरीबन 4 रुपए बनते हैं। डू यू थिंक वी नीड टू रिविजिट दिस सर? बिकॉज हम देख रहे हैं कि 73 से ओपन मार्केट जो है वो ड्राइव कर रही है डॉलर को। ये पहली दफा किया गया, किसी पहले माहदे के अंदर ये नहीं डाली गई थी क्लॉज, और उसको डालने की जरूरत इसलिए पेश आई है। आपको पता है डार साहब का एक वो है फैसिनेशन एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने का। पहले वो जब पिछली टर्म में थे तो उन्होंने रिजर्व्स इस्तेमाल किए उसको रुपए को आर्टिफिशियली स्ट्रेंथन करने के लिए, और इस दफा इंतजामी वो इंटरबैंक मार्केट में पेमेंट्स ही नहीं होने देते थे, और तकरीबन 3 से 4 अरब डॉलर की अदायगियों का बैकलॉग क्रिएट हो गया था। तो बुनियादी वजह ये है कि स्टेट बैंक आईएमएफ ये चाहता है कि आप आर्टिफिशियली मार्केट को कंट्रोल ना करें। ये बुनियादी चीज है। अगर आप ठीक रेगुलेशन रखेंगे, और जैसे हमने देखा है, पहले हम बात कर रहे थे कि जो ओपन मार्केट के अंदर भी है उसको भी एक रेगुलेटेड स्ट्रक्चर के अंदर लेके जा रहे हैं, और आप कोई आर्टिफिशियल मेजर्स नहीं ले रहे होंगे, तो ये 1.25% का जो फर्क है वो मेंटेन करना इतना मुश्किल भी नहीं होगा। आप अगर 2019, 20, 21 का टाइम फ्रेम अगर आप देखेंगे तो उस वक्त इससे भी कम फर्क होता था। जो ओपन मार्केट और इंटरबैंक का डिफरेंस है वो इससे भी कम होता था, और उसको वैसे भी हमारे सिर्फ आईएमएफ की बात नहीं है, जब इनका फर्क ज्यादा बढ़ जाएगा तो आपकी बाहर से जो तफसीलातें ज़र आ रही हैं वो बजाय कि आपके स्टेट बैंक के रिजर्व्स के अंदर आए, वो फिर हुंडी से आना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए मुल्क का इंटरेस्ट ये है कि इन दोनों का फर्क जो है वो कम से कम रखा जाए। मिफ्ता इस्माइल साहब, आप क्या कहेंगे? क्या आईएमएफ से एक बार फिर गुफ्तगू करनी चाहिए शमशाद बेगम को या इस निगरान हुकूमत को कि जनाबे वाला इसको रिविजिट कीजिए, ये हमारे लिए मसाइल पैदा कर रहा है, ये 1.25 का हदफ और जो स्प्रेड ओपन मार्केट और इंटरबैंक का है? जी, मेरे ख्याल से इसको हमको रिविजिट करना जरूरी है, क्योंकि अभी भी हमने 100% इम्पोर्ट नहीं खोला, और जब आप इम्पोर्ट पूरा नहीं खोलेंगी तो थोड़ी सी डिमांड तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में चीजों की स्मगल होकर आ जाती है, अफगानिस्तान से आ जाती है, ईरान से आ जाती है, दीगर जगहों से हो जाता है। तो इसकी वजह से जब स्मगल चीजें होती हैं तो हमारी इंटरबैंक से के अलावा बहुत ज्यादा डिमांड डॉलर की आ जाती है हवाला मार्केट के अंदर, जो एक्सचेंज कंपनी की मार्केट है, ओपन मार्केट जिसे हमें कहते हैं। तो इसकी वजह से डिफरेंस ज्यादा हो गया है। उस वक्त आईएमएफ ने बड़ी सख्त कंडीशन इसलिए भी लगाई थी कि उनको ट्रस्ट नहीं था कि हम रुपए को कन्वर्ट करने देंगे, डॉलर की एजेंसियां खोलने देंगे। लेकिन आई थिंक अगर और यही हुआ। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहबा आईएमएफ से बात करें कि देखो मैं आहिस्ते आहिस्ते खोल रही हूँ, प्राइवेटाइज अपने लिबरलाइजेशन की तरफ जा रही हूँ, तो आई थिंक ये 1.25 कंडीशन वाली जो कंडीशन है उसको या अभी से रिलैक्स तो नहीं करेंगे, लेकिन जब रिव्यू का वक्त आएगा इंशाल्लाह तो वो रिव्यू के वक्त जो है इसको वो कर देंगे, इसका एग्जम्पशन दे देंगे। और असद उमर साहब, अब आप देख रहे हैं कि डंडा चल चुका है और इदारों के जो करने वाले काम थे वो नहीं कर रहे थे, मफलूज थे, साथ रले मिले थे, खा पी रहे थे, वी डोंट नो, बट डंडा चल चुका है सर। स्मगलिंग हो, पेट्रोल की हो, डॉलरों की हो, उसके ऊपर हम देख रहे हैं होर्डिंग के खिलाफ भी उसके नताइज आना शुरू हो गए हैं जब से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मुतनब्बे किया है सबको और एक्शन लेने का कहा है। बॉर्डर्स के ऊपर से गाड़ियों को रोका जा रहा है और ये काम किया जा रहा है, एक्सचेंज रेट कंपनियों के बाहर लोगों को खड़ा किया जा रहा है। तो आपकी हुकूमत ने भी पीटीआई की ऑर्डिनेंस होर्डिंग के खिलाफ दी थी एसेंशियल कमोडिटीज की। क्या है बात सर, ये आप लोग करते हैं, ये देर पा सोल्यूशन है क्या? नहीं, मैंने आपसे जैसे कहा ना कि दो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हो सकता है कि करेंसी मार्केट के अंदर आपको मसाइल नजर आ रहे हो। एक जो है वो मईशत के बुनियादी उसूल हैं, फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी जिसको कहते हैं, उसकी वजह से हो रहा है, और उसका इलाज जो है वो इंतजामी इकदामात नहीं हो सकते, वो डंडे से नहीं उसका इलाज किया जा सकता। लेकिन अगर स्मगलिंग हो रही है तो स्मगलिंग जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी से नहीं रुकने वाली, उसके लिए फिर आपको इंतजामी इकदामात भी करने की जरूरत है। इसलिए मैंने पहले कहा कि ये इंतजामी इकदामात का इस्तेमाल होना बजाते खुद को गलत बात नहीं है, और तमाम हुकूमतें करती भी रही हैं, जरूरत भी पड़ती रही है। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक पॉलिसी के जो इकदामात करने की जरूरत है, अगर उसके बजाय सिर्फ डंडे के जोर पर रोकने की कोशिश करेंगे, वो नहीं काम करेगा। और असद उमर साहब, 200 यूनिट्स के सारिफीन जो कि 2 कैटेगरीज हैं, उनमें से भी एक कैटेगरी सब्सिडाइज कैटेगरी को रिलीफ मिलने की बात की गई है। हल क्या यही है? दिस वाज द बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो? आपकी हुकूमत भी होती तो यही करती? वो तो जी मेरे ख्याल में अनफेयर होगा। इस वक्त जो बैठे हुए हैं और नेगोशिएट कर रहे हैं, सेक्रेटरी खजाना है, वजीर खजाना है, वही बेहतर बता सकते हैं कि इस वक्त आईएमएफ के साथ कितना लीव था, कितना नहीं था। ये हमें पता है
कि एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में है। देखें पीछे बैकग्राउंड देखें ना, पिछले 1.5 साल के अंदर हुआ क्या है। एक तरफ तो आपके रिजर्व गिरते चले गए, आपकी मईशत जो है वो ऐसी सूरत हाल में पहुंची कि दुनिया में, पाकिस्तान में पहली दफा ये हुआ कि आलमी मंडी ने ये कहना शुरू किया कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट कर सकता है। ये कभी भी इंटरनेशनल मार्केट्स ने इसको सीरियस रिस्क नहीं कंसिडर किया था। ये पहली दफा हुआ कि पाकिस्तान की जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप रेट्स हैं वो 60-70% पहुंच गए, यानी आलमी मंडी ये कह रही थी कि पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है। उस सूरत हाल में एक तरफ गए, दूसरी तरफ आप कमिटमेंट्स करते रहे IMF के साथ, और IMF की कमिटमेंट आप पूरी नहीं करते गए। तो उस बैकग्राउंड को अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में ये अनफेयर होगा इनसे को बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करना कि शमशाद अख्तर ये जो भी और सेक्रेटरी फाइनेंस वाला नेगोशिएट कर रहे हैं, या गवर्नर सेंट्रल बैंक वहां पे बैठे हुए, कि इनके पास बहुत ज्यादा नेगोशिएटिंग स्पेस होगी। बहुत ही एक मुश्किल बैकग्राउंड से आए हैं और मुश्किल जगह पे इनको ये जिम्मेदारी मिली। अदब मलूज असद उमर साहब, आई अपोलोजाइज सर, मगर IMF के कॉन्ट्रैक्ट की धज्जियां तो आपकी हुकूमत ने भी उड़ाई बार बार अमल दरामद ना करके। सो इससे कतई नजर सर आप अब SIFC, आज भी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में SIFC को सपोर्ट करने के हवाले से भरपूर हमायत की गई और इस हुकूमत की भी हमायत की जाएगी, लेकिन इसी तरह का प्लान तो आपकी हुकूमत ने भी दिया था, सऊदी अरब ने भी तब भी वादा किया था और इंटरेस्ट शो किया था 21 अरब के प्रोग्राम का रेकोडेक और रिफाइनरीज के अंदर इन्वेस्ट करने के हवाले से। आपका तब ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल था जो साउथ बलोचिस्तान का डेवलपमेंट पैकेज देकर फारिग हो गया, और बाकी जो प्लान्स दिए थे आपके दोस्त ममालिक ने वो आपसे पूरे ही नहीं हुए। आपका फेलियर जो है आज हम देख रहे हैं कि हमें इस पॉइंट के ऊपर लाके खड़ा कर दिया है जिधर अफवाज पाकिस्तान को जामिन पड़ना पड़ रहा है और लीड करना पड़ रहा है, जो काम आप लोगों के करने के थे। देखिए असूलन तो जरूरत होनी नहीं चाहिए कि आपको फौज की मदद की जरूरत पड़े ऐसे काम करने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, लेकिन पाकिस्तान की रियलिटी ये है कि सिर्फ एक कांस्टेंट है पाकिस्तान के पावर स्ट्रक्चर के अंदर, वो पाकिस्तान फौज है। लेकिन इस वक्त की अगर आप सूरत हाल देखें, एक इंटरिम गवर्नमेंट बैठी हुई है, वो इंटरिम गवर्नमेंट को ये नहीं सबको पता, कोई कहेगा किस पार्टी को मौका दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा। ये सारी अनसर्टेनिटी अगर है तो सरमायाकार जो है वो सरमायाकारी कैसे करेगा। तो उसके अंदर एक कांस्टेंट जो है वो फौज है, और उस कांस्टेंट को आप इस्तेमाल लेवरेज अगर करना चाहते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं 2019 में भी जो पैसा आया था UAE से, सऊदी अरेबिया से, तो उसके अंदर भी फौज का एक सपोर्टिव फैसिलिटेटिव रोल रहा है, और खास तौर पे मिडिल ईस्ट के साथ इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो है, कतर के साथ भी, इवन गैस की डील जो हुई थी उसके अंदर भी फौज का एक फैसिलिटेटिव रोल रहा था। तो वो रोल तो उनका पहले भी रहा है, उसको और मिर्जा साहब आपसे यही सवाल पूछूंगी, क्या बात है कि आप लोग जो हैं वो आप लोगों के करने के काम होते नहीं है, जिस तरह असद उमर साहब कह रहे हैं कि ये एक कांस्टेंट मुल्क में अफवाज पाकिस्तान ही है। सर उस कांस्टेंट को आप अपने ऊपर इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस कब ट्रांसलेट करेंगे? नोबडी सीम्स टू टेक एनी ऑफ यू सीरियसली। अब ये सवाल का जवाब तो जरा तो मुश्किल है कि मेरे ख्याल से देखें हुकूमतों को करना चाहिए, लेकिन सियासी हुकूमतों को करना चाहिए, और आई थिंक ना करना, प्राइवेटाइज को ना करना इज अ फेलियर ऑफ पॉलिसी मेकिंग। मेरे ख्याल से कि ये वसी तर मफाद में पाकिस्तान के है, और अगर आपको एक आध लॉबी को टेक ऑन करना है तो करना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि ये फेलियर है हुकूमत की पॉलिसी मेकिंग का, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स का, ये फेलियर है। मगर असद उमर साहब आप भी बताइएगा, क्या ये सिर्फ फेलियर कह देना आसान है कि आप दोनों वज़राए खजाना रहे हैं, आप दोनों की बात के ऊपर आज भी कोई बिजनेस कम्युनिटी यकीन नहीं करेगी? शमशाद बीबी पे वो भी खामोश ही है, कुछ बोलती नहीं है, मार्केट कॉन्फिडेंस नहीं डाल सकती। मार्केट का कॉन्फिडेंस रिवाइव करने के लिए भी चीफ को बिजनेस कम्युनिटी से मिलना पड़ता है, जिसका काम है दे आर डिमांडिंग नीदर रिस्पेक्ट नॉर बीइंग एबल टू गेट द कॉन्फिडेंस। मैंने जैसे कहा ना जी, इस वक्त तो कागज पे कम से कम यही नजर आता है कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो शायद 3 या 4 महीने के लिए और हैं, और आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन और उसका रोल जो है गवर्नेंस के अंदर वो तकरीबन परमानेंट है। तो बिजनेसमैन का भी कसूर नहीं है। आप बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आईनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये जिम्मेदारी नहीं है आर्मी चीफ की, और आर्मी चीफ से की तरफ देखने के बजाय बिजनेसमैन को देखना चाहिए फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ। लेकिन जो रियलिटी इस वक्त जो पाकिस्तान की है और रही है काफी अरसे से, उसके अंदर ये ताज्जुब की बात भी नहीं है कि बिजनेस जो है, खासतौर पे बड़े बिजनेस जो है, वो हमेशा ही तकरीबन वो फौज की तरफ जरूर देखते हैं।
सर मिफ्ता इस्माइल साहब, अब मुल्क भर में दुकानें और कारोबार मगरिब के वक्त बंद करने की फिर तजवीज आ गई है। आप लोग भी ब्रिलियंटली इसके अंदर नाकाम हुए इसको अमल दरामद कराने में। अब हमें होप मिलना चाहिए कि ये निगरान हुकूमत ही करा लेगी, जो एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड हुकूमत ना करा सकी। देखें, गर्मियों के अंदर हमें कुछ ना कुछ लोड शेडिंग करनी जरूरी है, क्योंकि गर्मी के अंदर हम बहुत ज्यादा बिजली हमारे यहाँ डिमांड होती है और इतनी खपत नहीं होती, इतनी सप्लाई नहीं होती। इस सप्लाई को पूरी करने के लिए हम बहुत महंगी बिजली बनाते हैं। हुकूमत की खपत बहुत महंगी हो जाती है, हुकूमत की लागत बहुत महंगी हो जाती है वो बिजली बनाना। तो हुकूमत को महंगी बिजली नहीं बनानी चाहिए, और अगर थोड़ी सी लोड शेडिंग करनी हो तो लोड शेडिंग कर लें, या आप दुकानें बंद करवा दें। कम से कम दुकानें अगर 7 बजे बंद नहीं करवाते तो कम से कम शादी हॉल तो 10 बजे बंद करवा दें। थोड़ी बहुत चीजें तो करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं आपको 2-3 घंटे का लोड शेड करना पड़ेगा। तो गर्मियों के महीनों में खास तौर पे जब तरबेला फुल स्टीम पे ना चल रहा और आप मतलब महंगी बिजली बना रहे हो, और हमको एकदम फर्नेस ऑयल वगैरह से बिजली बनाना एकदम छोड़ देनी चाहिए और सस्ती बिजली बनानी चाहिए। और सर्दियों के अंदर ऑन द अदर हैंड हमको बिल्कुल इनकरेज करना चाहिए कि मजीद बिजली का यूज हो, जिसके लिए गैस थोड़ी सी महंगी करनी जरूरी है, और इंडस्ट्रीज को जो है वो आहिस्ते आहिस्ते गैस से हटा के बिजली पे लाने की जरूरत है, लेकिन ओवर टाइम। असद उमर साहब, आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये सब तो नाकाम हुए, मगर आप ये भी देख रहे हैं कि शायद 7 बजे दुकानें बंद करने से तो ये एनर्जी सेक्टर के इश्यूज नहीं रिजॉल्व होंगे, जिसमें लो रिकवरीज, हाई टैरिफ्स, एडिशनल कैपेसिटी का प्रॉब्लम है। 8 बजे मार्केट को बंद करना नहीं। देखें, ये जो कोविड जब खत्म हो रहा था तो उस वक्त ये एनसीओसी में भी इस चीज के ऊपर बड़ी डिस्कशन हुई थी, और एक पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि बड़ा जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, इस वक्त एनसीओसी के अहकामात को माना जाता है, हम परमानेंट कर दें और अर्ली मार्केट क्लोजर की तरफ चले जाएं। जरा सा आप समझने की कोशिश करें कि इस वक्त बिजली का प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है। सबसे बुनियादी वजह जो इस वक्त इतनी ज्यादा जो तकलीफ महसूस हो रही है वो इसलिए हो रही है कि आपने जाके कैपेसिटी क्रिएट कर दी है मंसूबे लगा कर, जिसकी खपत कोई पाकिस्तान के अंदर नहीं है, और 1300 अरब रुपए आप दे रहे हैं सिर्फ, चाहे आप 1 यूनिट भी बिजली इस्तेमाल करें या ना करें। इस सूरत हाल के अंदर अगर आप यहाँ से निकलना चाहते हैं तो ये आपके लिए बड़ा जरूरी है कि बिजली की खपत पाकिस्तान में बढ़े, आपकी इंडस्ट्री का पहिया तेजी से चले। अच्छा, वो एक तरफ इकोनॉमी आपकी बैठ गई है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि कमर्शियल एक्टिविटी भी मैं जल्दी खत्म कर दूंगा, यानी मैं बिजली की कंजम्पशन और कम कर दूंगा। इससे तो आप मजीद प्रॉब्लम बढ़ाएंगे। आप ये सर्कुलर डेट का प्रॉब्लम जो है वो और बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ 2 साबिक वज़राए खजाना असद उमर और मिफ्ता मौजूद थे। छोटा सा वक्फा, गोना बी राइट बैक। अरशद शरीफ को हमसे बिछड़े ठीक 319 दिन हो चुके हैं नाजरीन। 1.5 माह बाद अरशद शरीफ की बरसी है, मगर इन 319 दिनों में अभी तक अरशद शरीफ के कत्ल का सिरा नहीं तलाशा जा सका। और अब सोशल मीडिया पे जाकर आप एजाज सैयद की मोहसिन दावड़ साबिक पार्लियामेंटेरियन का इंटरव्यू देख सकते हैं। हम केनियन अथॉरिटी से क्या पूछें, हम इदारों से क्या पूछें, जब हमारे चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स इतनी बेहिसी और लैक ऑफ सेंसिटिविटी दिखाते हैं। किस तरह स्पीकर राजा परवेज अशरफ